Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स रिसेंटली गॉट जीआई टैग फ्रॉम उत्तराखंड? उत्तराखंड स्टेट से अभी कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला? और ये हाईएस्ट एवर है कि एक दिन में इतने प्रोडक्ट्स को किसी भी जगह से जीआई टैग मिला है। तो 18 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अभी जीआई टैग मिला। इन 18 प्रोडक्ट्स से अगर हम बात करें तो 13 तो एग्रीकल्चर गुड्स रहेंगे, 4 हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेंगे, 1 फूड स्टफ रहेगा और 1 मैन्युफैक्चर गुड रहेगा, जिसको यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड के ये प्रोडक्ट्स रहेंगे जिनको जीआई टैग मिला। एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को 18 प्रोडक्ट्स को एक ही दिन में जीआई टैग से सम्मानित किया गया हो। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें उत्तराखंड के, तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन रहेंगे यहाँ पर? जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? वो है आपकी देहरादून। और उत्तराखंड में ही एक कंगडाली फेस्टिवल भी होता है, कंगडाली फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी मार्क करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ 18 जीआई टैग्स इन अ सिंगल डे। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड द जीआई सर्टिफिकेट टू दीज प्रोडक्ट्स। एंड विद दिस 18 न्यू प्रोडक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स इन उत्तराखंड हैज बिकम कितना? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे डैश। करेक्ट, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए हैं जीआई प्रोडक्ट्स इन उत्तराखंड? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हम जानते हैं तमिलनाडु में हाईएस्ट, और तमिलनाडु इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। इसके कितने टैग्स हैं? ये 2 नंबर आप मुझे कमेंट करोगे। उत्तराखंड में कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है अभी तक, और तमिलनाडु में जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीआई टैग्स मिले अभी तक, उसमें कितने जीआई टैग्स दिए गए हैं? वो दोनों चीजें आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा? ये जो ग्राम मनचित्रा ये एप्लीकेशन है, ये याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन के अंडर क्या होगा कि जो भी पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाएगी विलेजेस के लिए, उससे इस पर्टिकुलर ग्राम मनचित्रा से, इस ई एप्लीकेशन से, इस जीआईएस एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको एनालिसिस करने में, बेटर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जीआईएस क्या होता है? ज्योग्राफिकल और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो कपिल मोरेश्वर पाटिल इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा। एंड ये एंकरेज कर रहा है टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत। ये यूटिलाइज करता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टू ऑफर डायनेमिक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फ्रॉम ग्राम पंचायत टू विजुलाइज एंड प्लान डाइवर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म स्पैनिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मच मोर।
ठीक है। एंड ये जो ग्राम मनचित्र है ये सर्व करेगा एज अ पोर्टल सिस्टम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, कि जो भी आप ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान होंगे उनमें एक सहयोग की तरह उसमें हेल्प करेगा, ताकि जो भी ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को? BESS कंसोर्टियम को ज्वाइन करने वाली वो कंट्री कौन सी बन गई है? तो याद रखेंगे अभी 11 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है COP28 के दौरान, जो कि दुबई UAE में हो रही है, करेक्ट। तो इसके दौरान 11 कंट्रीज में से ज्वाइन किया, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है वो क्या है? हमारी इंडिया, राइट। इंडिया वो कंट्री बनी जिन्होंने अभी BES कंसोर्टियम को ज्वाइन करा है, ठीक है। इससे क्या होगा यहां पर याद रखेंगे सबसे पहले कि ड्यूरिंग 2023 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि COP28 हुई, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस BES कंसोर्टियम। इट वाज लेड बाय ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल GLC ऑफ द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो आपकी COP28 थी दुबई UAE में भी 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये चल रही है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि 11 कंट्रीज को ज्वाइन किया गया था, 11 कंट्रीज बल्कि इनका पार्ट बनी, जिसमें से एक हमारी इंडिया रहेगी। एंड जो BESS कंसोर्टियम है ना, इनका एक टारगेट है, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हम 5 गीगावाट ऑफ BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अचीव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2024। अपार्ट फ्रॉम दिस 90 गीगावाट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी मस्ट बी डेवलप्ड to achieve the estimated 400 gigawatt of renewable energy required to elevate the energy poverty by 2030 and save a gigaton of carbon dioxide। अगर हमें ये बचाना है तो हमें एक तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉल्यूशन ना फैले एटमॉस्फेयर में, तो जिस तरीके से हम एनर्जी डेवलप कर रहे हैं ना, हमें वो चेंज करना पड़ेगा। हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और उसी की ट्रांजिशन की यहाँ पे ये बात की जा रही है, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे, इंडिया अभी मेंबर बन गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम का। नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड BESS, ये क्या है? सबसे पहले तो याद रखेंगे गवर्नमेंट जो भी आप अलग से इनिशिएटिव लाते हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म लाते हैं कि हम यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, हम सो एंड सो अपना खुद का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट खुद से फंडिंग प्रोवाइड करेगी, एक तो चीज़। फिर यहाँ पे याद रखेंगे इंडीग्रिड, ये इंडिया का पहला पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है दैट वाज अवार्डेड विद द फर्स्ट BESS प्रोजेक्ट टू डिजाइन, सप्लाई, टेस्ट, इंस्टॉल, कमीशन, ऑपरेट, मेंटेन अ 20 मेगावाट इन दिल्ली, राइट। फिर इसी के अलावा GEAPP, ये क्या था? अभी हमने देखा था कि ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो GEAPP ये प्रोवाइड करेगा कंसेशनल डेट फाइनेंसिंग फॉर 70% ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब जो भी प्रोजेक्ट में आपकी डिमांड होगी ना, जितने का भी प्रोजेक्ट होगा, उसका 70% तक फाइनेंस आपका ये GEAPP भी कर देगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया वेरियस इनिशिएटिव्स टू एड्रेस मीथेन एमिशंस ग्लोबली? तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक, राइट। मीथेन एमिशंस को, मीथेन होता है CH4, राइट। मीथेन को ग्लोबली रोकने के लिए, उसके एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है? पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। इससे आपका क्या है? कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन हीट को ट्रैप कर लेता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हीट को ट्रैप कर लेती है। तो अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इससे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसीलिए एमिशन, मीथेन के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। इन्हीं के द्वारा अभी एक 18 मंथ का ब्लूप्रिंट भी लॉन्च किया गया फॉर मीथेन रिडक्शन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा 15 नेशनल प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया ताकि मीथेन को रिड्यूस किया जा सके। ये जो प्रपोजल्स थे COP28 के दौरान ही लॉन्च किए गए, करेक्ट, जो कि दुबई UAE में हो रही है। अगर फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? वॉशिंगटन DC में, एंड 1944 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक लॉन्च कर रहा है 18 मंथ लॉन्ग ब्लूप्रिंट फॉर मीथेन रिडक्शन। 15 नेशनल प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए, एंड द प्रपोजल्स वर लॉन्च्ड एट द COP28 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि दुबई UAE में हुआ फ्रॉम 30 to 12 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी इंट्रोड्यूस किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट। तो अभी हम कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी एक सेविंग और एक करंट अकाउंट लॉन्च किया गया है, राइट।
एंड ये है माई फैमिली माई बैंक सेगमेंट वॉज लॉन्च अंडर द बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहारों की उमंग फेस्टिव कैंपेन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, करेक्ट, द अकाउंट्स अंडर दिस बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार अकाउंट विल बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बाय द प्राइमरी अकाउंट होल्डर। फिर यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट का सेगमेंट है, राइट, इज ओपन टू अ फैमिली ऑफ अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 मेंबर्स। जो करंट अकाउंट सेगमेंट है, इट इज ओपन फॉर पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विच आर ग्रुप कंपनीज और सिस्टर कंपनीज, करेक्ट। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड। तो HDFC बैंक ने अभी टाटा न्यू के साथ पार्टनरशिप की ताकि एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके, जो कि है आपका टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इसको पावर किया जाएगा रुपे एंड वीजा से। किससे पावर किया जाएगा? रुपे एंड वीजा से इसको पावर करा जाएगा, राइट। 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड। ये 2 कैटेगरीज में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टाटा न्यू की बात करें, ये काफ़ी फेमस ऐप है, इसको टाटा की सुपर ऐप के नाम से भी जाना जाता है। दिस ऐप वाज लॉन्च ऑन 7 अप्रैल 2022 एंड टाटा न्यू ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, बुक फ्लाइट कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, राइट। और इसके बदले में टाटा न्यू ऐप आपको न्यू कॉइन्स देती है और एक न्यू कॉइन आपके 1 रुपये के बराबर होता है, जो कि आप इसी एप्लीकेशन में रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने ऑफर किया लोन्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड को होस्ट कुतुम विद IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपको इनिशिएटिव्स याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपका प्रमोट करता है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को, इंडिया के हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट को ये प्रमोट करता है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ याद रखेंगे, इन्होंने अभी रिसेंटली कुतुम, इन्होंने IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड इन्होंने प्रेजेंट किया 15th चैप्टर ऑफ द कुतुम इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका एम क्या है? टू डिस्कस द ग्रीन बिल्डिंग इकोसिस्टम, टू डिस्कस ग्रीन बिल्डिंग इकोसिस्टम, ठीक है। फिर दूसरा याद रखेंगे, इन्होंने अभी $98 मिलियन या फिर 816 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही $200 मिलियन का लोन दिया टू एनहेंस वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन उत्तराखंड में, ठीक। और कुतुम का 15th चैप्टर भी इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया, ये हम देख ही चुके हैं। इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक का फाउंड किया गया था 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, प्रेसिडेंट मत्सुसुगु असाकावा रहेंगे। मूविंग ऑन, SBI कार्ड जॉइंट्स भारत बिल पे इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। इससे क्या होगा कि जो SBI कार्ड्स है उससे आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे थ्रू QR कोड। जो भी क्रेडिट कार्ड है उससे आपकी पेमेंट इजी हो पाएगी, राइट। एंड इसीलिए ही यहाँ पे याद रखेंगे SBI कार्ड ने ज्वाइन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी ऑफ भारत बिल पे एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस SBI कार्ड इनटू भारत बिल पे वाज मेड बाय NPCI भारत बिल पे, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी रहेगी NPCI की। जो गोल है ऑफ दिस पार्टनरशिप इज टू मेक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट मोर कन्वीनियंट एंड असेसिबल ऑल अराउंड इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इससे क्या होगा, जो SBI कार्ड्स की अप्रॉक्सीमेटली 1.68 करोड़ कस्टमर्स है ना, वो इजीली अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे थ्रू दीज ऑनलाइन पेमेंट्स एप्लीकेशन, जैसे आपकी पेटीएम हो गई, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड जो भारत बिल पे की सेटलमेंट टेक्नोलॉजी है ना, इससे इनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इंश्योरिंग रिलायबल एंड सीमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। Credit card issuers already present in this category include Kotak Mahindra Bank, Bank of Baroda Financial, Federal Bank, AU Small Finance Bank, IndusInd Bank and Canara Bank. नेक्स्ट, आदित्य बिरला सन लाइफ इनके द्वारा लॉन्च किया गया सैलरीड टर्म प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ये एक टर्म प्लान लॉन्च किया गया है। ये प्लान अलाउ करता है कस्टमर्स को टू कस्टमाइज देयर एग्जिस्टिंग प्लान बेस्ड ऑन देयर प्रोटेक्शन नीड्स एंड विद दिस ऑप्शन जो पॉलिसी होल्डर हैं दे कैन रिसीव अ रिफंड ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अपॉन द सर्वाइवल, राइट। एंड जो ये आपका टर्म प्लान रहेगा बेसिकली 49 ईयर्स तक मैक्सिमम आप इसको यूज कर सकते हैं। एज नहीं है, ये टर्म है कि 49 ईयर्स तक आप इसको यूज कर पाएंगे। देन 21 to 55 ईयर्स तक आप एंट्री एज रहेगी और 70 साल तक आपको इसको रिडीम करना ही पड़ेगा, राइट। फिर अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की, तो MD एंड CEO कौन रहेंगे यहाँ पे? वो है कमलेश राव। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? सन 2000 में,
नेक्स्ट, यूनियन बैंक ने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू बूस्ट देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने पार्टनर किया असेंचर के साथ, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल सर्विस कंपनी है, करेक्ट, ताकि डिजाइन एंड डेवलप किया जा सके स्केलेबल एंड सिक्योर एंटरप्राइज डाटा लेक प्लेटफॉर्म विद एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज। ये जो आपकी पार्टनरशिप है ना, ये इंप्रूव करेगी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेंट्रिक बुकिंग सर्विसेज एंड मैनेज द रिस्क ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूज करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस सच एज योर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेवरेज यूज करेंगे, राइट, और कैसे हम बेटर एनालिसिस दे सकते हैं ताकि जो वर्किंग है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वो इंक्रीज की जा सके। इसीलिए यूनियन बैंक ने कोलैबोरेट किया है एसेंचर के साथ अभी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो इनके हिसाब से इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। अभी USA टॉप पर है, फिर आ जाता है चाइना, थर्ड पर है जर्मनी, फिर है फ्रांस, और आई करेक्ट माई सेल्फ, फिर है जापान, और फिफ्थ पर है हमारा इंडिया। इवन इंडिया ने अभी $4 ट्रिलियन की GDP को भी क्रॉस किया, और सून 2030 तक इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा प्रेडिक्ट करा जा रहा है, राइट। फिर यहीं पे डाटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक, ये S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा रिलीज की गई, एंड इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2030, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 years। यहीं पे डाटा देखें तो GDP सेट टू ग्रो बाय 6.4% इन 2020 फिस्कल ईयर 24, जो कि 40 बेसिस पॉइंट हायर है देन द प्रीवियस फॉरकास्ट। देन बात करें 25 में तो 6.4% से, फिस्कल ईयर 26 एंड 27 में 6.9 एंड 7% रिस्पेक्टिवली। फिर इंडिया की जो नॉमिनल GDP है इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन इन 2023 और 22, और अभी मैं बता रहा हूँ 2023 में इन्होंने $4 ट्रिलियन का मार्क अचीव कर लिया है, एंड 7.3 इन 2030। नेक्स्ट, ONDC इन्होंने लॉन्च किया बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव टू टैकल चैलेंजेस इन द डिजिटल कॉमर्स स्पेस। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। इन्होंने भी लॉन्च किया नेशन वाइड इनिशिएटिव जिसका नाम रहेगा बिल्ड फॉर भारत, इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंटलर इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलके, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू टैकल डाइवर्स चैलेंजेस जो कि हमारे डिजिटल कॉमर्स स्पेस में आते हैं, एंड इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड at a national scale is more than 50 cities across India, plans to utilize India's technological and entrepreneurial potential, right। और ONDC अगर आपको याद हो, आप पेटीएम की एप्लीकेशन खोल के देखेंगे ना, तो यहाँ से आप QR कोड स्कैन करते हैं तो जस्ट यहीं पर आपको दिखेगा ONDC लिखा हुआ। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट्स अपना ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे सिमिलर टू दैट ऑफ अ फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। सुगंधी सुंदरराज, राइट, इनको ऑनर किया गया PRSI नेशनल अवार्ड 2023 से। PRSI क्या है? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ऑनर किया सुगंधी सुंदरराज को, राइट, जो कि रीजनल हेड है ऑफ पब्लिक रिलेशंस एट अपोलो हॉस्पिटल्स विद PRSI नेशनल अवार्ड्स 2023 फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द PRSI एंड द इंडस्ट्री। ये जो अवार्ड है इट वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल जो कि न्यू दिल्ली में हुआ 25 से 27 नवंबर के बीच में, एंड द अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड हर डेडिकेशन टू द PR इंडस्ट्री एंड हर रोल इन शेपिंग द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द PR फंक्शन इन द हेल्थ केयर डोमेन। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो ये है आपका सुगंधा सुंदरराज, राइट, इनको ऑनर किया गया PRSI नेशनल अवार्ड 2023 से। देन नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर के ऊपर। SBI ने एक्वायर किया एडिशनल 20% स्टेक इन SBI पेंशन फंड्स फॉर 229.52 करोड़ रुपीज इन कैश, करेक्ट। और इससे अब जो टोटल स्टेक आ जाता है इनके पास, SBI के पास, वो कितना होगा? टोटल 80% ये ओन करते हैं, और जो बाकी 20% है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के पास रहेगा। ये जो एक्विजिशन है 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक, SBI की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे? दिनेश कुमार खारा जी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, 1955 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। अगर SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो MD एंड CEO यहाँ पे कौन रहेंगे? वो है एंथनी रॉड्रिगस, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 2007 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि चंद्रयान 3 का जो प्रपल्शन मॉड्यूल है ना, ये लूनर ऑर्बिट से अब शिफ्ट होकर कहां पर आ गया है? अर्थ ऑर्बिट में आ गया है। आई रिपीट, जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, वो आपका लूनर ऑर्बिट से अब कहां पर आ गया है? अर्थ ऑर्बिट में। ये न्यूज याद रखेंगे।
एंड चंद्रयान 3 किसका है? इसरो का है, हमारे इंडिया का, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं UNCTAD ई वीक। ये UNCTAD ई वीक की बात करें तो 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है। इसको पहले UNCTAD ई कॉमर्स वीक के नाम से जानते थे। इट इज़ अ ग्लोबल फोरम ऑन डेवलपमेंट एंड द डिजिटल इकोनॉमी, करेक्ट। इससे पहले लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो 25 से 29 अप्रैल के बीच में ये वीक ऑब्जर्व करा गया था, राइट। ई वीक, इसकी थीम क्या रहेगी? थीम भी याद रखेंगे, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। आई रिपीट, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ये आपकी थीम रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। 18 नए प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड को GI टैग मिला। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने GIS एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा को लॉन्च किया। इंडिया ने ज्वाइन किया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया वेरियस इनिशिएटिव्स टू एड्रेस मीथेन एमिशंस ग्लोबली एट COP28 समिट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। HDFC बैंक ने पार्टनर किया टाटा न्यू के साथ टू लॉन्च टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑफर किया लोन्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड को होस्ट कुतुम विद IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। SBI कार्ड जॉइंस हैंड्स विद भारत बिल पे इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। यूनियन बैंक ने कोलैबोरेट किया असेंचर के साथ टू बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। S&P ग्लोबल क्रेडिट कार्ड आउटलुक 2024 की बात करें, इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। ONDC ने लॉन्च किया बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव टू टैकल चैलेंजेस इन डिजिटल कॉमर्स स्पेस। सुगंति सुंदरराज को ऑनर किया गया विद PRSI नेशनल अवार्ड से। SBI ने एक्वायर किया एडिशनल 20% स्टेक इन SBI पेंशन फंड फॉर 229.52 करोड़ रुपीस। चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल ये लूनर ऑर्बिट से शिफ्ट होकर कहां पर आ गया है? अर्थ ऑर्बिट में। एंड UNCTAD ई वीक ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन कंपनीज का नाम बताओ जिनको लिस्ट किया गया इन द वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2022 के लिस्ट में। आर्म्स, वेपन्स, राइट, जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली उनको डेवलप करने के लिए कौन सी वो कंपनीज हैं जो कि इंडियन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, इनको लिस्ट किया गया वर्ल्ड की टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिस्ट में। तो जो इंडिया की 3 कंपनियां आती है ना, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन तीनों को लिस्ट किया गया और ये तीनों कंपनियां जो कि पहली बार इस लिस्ट में इंक्लूड करी गई हैं। अगर यहां पे बात करें टॉप कौन सी कंट्री ने किया, वो है USA विद 42 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो कि इस टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिस्ट में रिलीज की गई। अब पूछा जा सकता है कि ये जो लिस्ट है वर्ल्ड की टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज की लिस्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो सिप्री के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। सिप्री का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्वीडन में। तो आप यहां देख सकते हैं स्वीडिश थिंक टैंक जो कि है सिप्री, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2022 की एंड इसमें इंडिया की 3 कंपनियां रहेंगी जो कि है हॉल, बेल एंड MDL, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड USA यहां पे डोमिनेट कर रहे हैं इन दिस लिस्ट विद 42 कंपनीज। सिप्री की बात करें हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर और कुछ करंट अफेयर्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ अभी रिसेंटली बुकर प्राइज 2023 का बुकर प्राइज किसके द्वारा जीता गया? तो 2023 का जो बुकर प्राइज जीता गया वो एक आयरिश ऑथर है। क्या नाम रहेगा उनका? वो है पॉल लिंच, इनके द्वारा जीता गया, राइट। फिर इसी के साथ साथ फिकी ने किन को अपना प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किया है? तो फिकी ने अपॉइंट किया अनीश शाह को अपना नया प्रेसिडेंट। देन वेस्ट बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली किन को इलेक्ट किया गया एज द वाइस चेयर ऑफ UN एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल पर? आई रिपीट, UN के एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल पर किन को वाइस चेयर अपॉइंट किया गया? वो रहेंगे हमारे CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया ISSA विजन 0 2023 अवार्ड एट द 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क? तो याद रखेंगे ESIC क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट। इनको यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है एंड ESIC को यहाँ पर अभी विजन 0 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय ISSA।
ISSA क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। आप इसकी जगह यहाँ पे देखिए ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है और इनको विजन जीरो 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय ISSA, जो कि है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। ड्यूरिंग द 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये कांग्रेस हुई थी, 23rd एडिशन था इस कांग्रेस का, करेक्ट। एंड इसी के दौरान यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया था। एंड ये जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी। जो भी आपके वर्क एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे वर्ल्ड लोगों की जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, इंश्योरेंस, वर्क कल्चर क्या है, उन सभी को चीज़ में ध्यान रखने के लिए और इसीलिए, और ये जो ESIC है ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करती है, अच्छे से एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखती है, उनका हेल्थ का ध्यान रखती है, इसीलिए इनको इस विजन जीरो अवार्ड से सम्मानित करा गया था। फिर इसी से याद रखेंगे जो 23वीं कांग्रेस हुई थी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ, ये कहाँ पर हुई थी? सिडनी में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कब से कब तक? 27 से लेके 30 नवंबर तक हुई थी, राइट। किसके द्वारा कराई गई थी? ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेफ वर्क न्यू साउथ वेल्स एंड ISSA के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसको कराया गया था, जिसके दौरान विजन जीरो अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? ESIC को, ठीक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये वाई ESIC, बिकॉज ESIC वॉज अवॉर्डेड फॉर देयर आउटरीच इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सेफ्टी के लिए एंड उनके हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये इनको प्रोवाइड कराया गया। ESIC प्रोवाइड करता है पोस्ट एक्सीडेंटल मैकेनिज्म फॉर मेडिसिनल केयर एंड कैश बेनिफिट टू देयर वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। द अवार्ड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द इंप्रूवमेंट मेड इन द सर्विस डिलीवरी ऑफ द ESIC कॉर्पोरेशन एज वेल एज इंक्रीज इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी यूजिंग IT एनेबल्ड इनिशिएटिव्स। ESIC की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे यहाँ पर? राजेंद्र कुमार। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, 1952 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। फिर जीरो विजन अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? ISSA के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो 7 गोल्डन रूल हैं ऑफ विजन जीरो उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। बेसिकली जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एट वर्क, उनके एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके वेलबिंग के लिए जो काम किया जाता है कंपनीज का, क्या वो ध्यान रखती हैं या नहीं, इसीलिए यहाँ पर ESIC को ये जीरो अवार्ड से सम्मानित करा गया। अगर ISSA की बात करें, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एंड एक यूनिक नेटवर्क फॉर ऑल दोज इन सोशल सिक्योरिटी कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। इसका हेडक्वार्टर ILO इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट मोहम्मद अजमान एंड 1927 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको मार्क करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 23 डिक्लेयर किया गया था? तो वो है रिज, राइट। रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है, मार्क करके चलेंगे। रिज का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे ये एक कॉलिक्वल नाउन है जिसका मीनिंग रहेगा स्टाइल, चार्म, स्टाइलिश होना, अट्रैक्टिवनेस होना, राइट, एंड द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ रोमांटिक और अ सेक्सुअल पार्टनर। इसको आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर 2022 की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? गॉब्लिन मोड को, राइट। गॉब्लिन मोड वर्ड ऑफ द ईयर बना था, लेकिन अब 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? वो है रिस। नेक्स्ट, which country has been elected as the vice chair of UNESCO executive board from the Asia Pacific group? वाइस चेयर अपॉइंट की गई है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ऑफ द एशिया फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप, राइट, और ये यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा, तो वो है पाकिस्तान। मार्क करके चलेंगे, राइट। 58 मेंबर्स यहां पर है, राइट, और 58 मेंबर्स में से वोटिंग हुई तो 38 मेंबर्स ने बोला कि पाकिस्तान को यहां पर यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयर बना दो। वहीं पे इंडिया के लिए भी वोटिंग हुई तो इंडिया को सिर्फ 18 वोट्स मिले यहां पर, करेक्ट। एंड ये 218 सेशन था यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इलेक्शंस का, जो कि पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पोजीशन होती है ना, 4 साल के लिए होती है। इंडिया 2021 में इस पोजीशन पे इलेक्ट किया गया था, 2025 तक रहेगा, और अब पाकिस्तान 2023 में इलेक्ट किया गया है तो 2027 तक इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर बात करें तो द एग्जीक्यूटिव बोर्ड 58 मेंबर स्टेट्स का होता है विद अ 4-year टर्म, and it is one of the 3 constitutional organs of UNESCO along with 194 general conference and the secretariat। ये जो ब्यूरो है ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 मेंबर से कंसिस्ट करता है, एक चेयरपर्सन, 6 वाइस चेयरपर्सन एंड 5 चेयरपर्सन ऑफ द परमानेंट कमीशन एंड द कमिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस?
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है, वो है राजीव आनंद। ये किनको सक्सीड करेंगे, अनलजीत सिंह को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। 5 दिसंबर 2023 से इन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। राजीव आनंद की बात करें तो ये डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ एक्सिस बैंक सिंस 2021। ठीक, फिर इसके अलावा बात करें तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये एक 70-30 जॉइंट वेंचर है बिटवीन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अ पार्ट ऑफ द मैक्स एंड द एक्सिस बैंक। ठीक, 70-30 पार्टनरशिप में आता है, जॉइंट वेंचर में आ जाता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप और एक्सिस बैंक के बीच में। ठीक, तो याद रखेंगे राजीव आनंद ये रिप्लेस करेंगे नालजीत सिंह को टू बी द चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट COP28 समिट। दूसरा, फैल्कलैंड कैंप दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये क्यों न्यूज में था ये भी बताओ। तीसरा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ओरिएंटा सुत्सुगमुशी बैक्टीरिया, राइट, कौन सी डिजीज इससे फैलती है वो बताओ। तो ये 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूँ सभी बच्चे यहाँ कमेंट करें। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.